Very pleasant morning to all my lovely students. As you know that we are doing chapter number 3, Delhi Sultanate, in which we have discussed so many dynasties. So last dynasty which we have discussed, what was the dynasty? It was the Sayyid dynasty. Now today's topic is Lodi dynasty. Today we are going to discuss the Lodi dynasty. This dynasty is very important because it is the last dynasties of the Delhi Sultanate. After that, Mughal Empire, Mughal dynasty was started. So let's start with the Lodi dynasty. First ruler of the Lodi dynasty was Behlod Lodi. Second was Sikandar Lodi, and third was Ibrahim Lodi. You keep remember these all points. First, you have to learn first ruler of the Lodi dynasty, Behlod Lodi, then Sikandar Lodi, and then Ibrahim Lodi. After the Ibrahim Lodi, this dynasty was ended with the Delhi Sultanate also. So first I am describing about the Lodi dynasty. Behlod Lodi became the new Sultanate of Delhi. This dynasty started with the Behlod Lodi. So Behlod Lodi, then the governor of the Sirhind Punjab become the new Sultan of Delhi. इसे नया सुल्तान बनाया गया. हमने बात की थी तैमूर इन्वेजन्स की, फिर सैयद डायनेस्टी की. Then the Lodi dynasty was the first dynasty of the Afghan rulers. अफगान रूलर्स थे सारे ही इस डायनेस्टी में जो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी दिल्ली सल्तनत में. सो लोधी डायनेस्टी इज फेमस for also that it was the first dynasty of the Afghan ruler that come to the power during Sultanate period. ये पहले ऐसे अफगान रूलर्स थे जिन्होंने यहाँ पर दिल्ली पर रूल किया और सुल्तान बने. Then first Behlod was succeeded by his son Sikandar Lodi. देखिए सबसे पहले रूलर कौन बना? Behlod Lodi. He was started with 1451, and after the death of his Behlod Lodi, his son was become the ruler Sikandar Lodi. Who was the son of the Behlod Lodi? Sikandar Lodi. And he was succeeded by his son Ibrahim Lodi. और सिकंदर लोधी के बाद कौन रूलर बना? इब्राहिम लोधी. यहाँ पे 3 नाम याद रखने आपको. बेहलोद लोधी, then Sikandar Lodi, and last Ibrahim Lodi. Now, first battle of Panipat. Keep remember this. So students, now we are starting the administrations of the Sultanate time. The first topic of your book is keep your book with you. I am explaining according to your book. The Sultan. First topic is Sultan. The Sultan was the central and most significant person in the Sultanate. सबसे बहुत important person होता था सुल्तान, जिसे king कहा जा सकता है. He defeated the empire against external attack and the maintained law and order. उसका वर्क क्या था कि जो एक्सटर्नल अटैक होते थे या इंटरनल अफेयर्स थे तो अपने कंट्री को प्रोटेक्शन देना, अपने एरिया को लॉ और ऑर्डर को फॉलो करवाना, ये सब उसके वर्क थे. देन ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ एम्पायर. और जो कमांडर था, कमांडर इन चीफ था, यानी कि आर्मी का सबसे बड़ा हेड कौन होता था? सुल्तान. नाउ नेक्स्ट इज नोबल्स. दे occupied civilian and military positions in the Sultanate and worked closely with the Sultan. ये वो लोग थे जो सिविलियन भी थे और मिलिट्री के कहीं पोजीशंस पर भी थे, और सल्तनत के जो वर्क थे, जो इम्पोर्टेंट वर्क थे सुल्तान के, वो ये नोबल लोग किया करते थे. नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू द रैंक द Khans were the highest followed by the Maliks and the Amirs. अब यहाँ पर जो खान थे उनकी पोजीशन सबसे हाईएस्ट थी, जिसमें मलिक भी थे एंड द अमीर्स थे. ये नेम है हिंदी नेम से, मलिक एंड अमीर्स एंड द खान्स. द सैलरीज ऑफ द नोबल वर अरेंज्ड फ्रॉम द रेवेन्यू असाइन टू देम. जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होता था उनसे नोबल्स को क्या दी जाती थी? सैलरी दी जाती थी.
अकॉर्डिंग टू द इक्ता सिस्टम, यहाँ पर इक्ता सिस्टम की बात कर रहे हैं, द लैंड रिसोर्सेज ऑफ द सल्तनत वर डिवाइडेड एंड गिवन टू द नोबल इन द लिन्यू टू कैश फॉर देयर सर्विसेज। इक्ता एक तरह का जो टैक्स होता था, इक्ता सिस्टम, जिसमें जो लैंड रिसोर्सेज है वो डिवाइडेड थे, गिवन टू द नोबल्स, यानी कुछ लैंड किनको दे दिए गए थे, नोबल्स को, ताकि वो उनसे टैक्स कलेक्ट कर सके और कैश में, ताकि उनको टैक्स के बदले उनकी सैलरी भी उसी रेवेन्यू से जाती थी। नेक्स्ट इज इक्तेदार, कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स इन द विलेजेस यूजिंग द सेम इनकम टू द मेंटेन द आर्मी। इक्तेदार जो है वो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे फार्मर्स से विलेजेस में, और सेम इनकम मेंटेन टू आर्मी, आर्मी का भी सारा खर्चा उससे निकलता था। इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रॉयल पैलेस, जो भी महल होते थे, राजमहल, द खानकाहा और द वर्कशॉप्स हेडेड बाय द मलिक, उसका हेड कौन होता था, मलिक, वर सेटअप द वेयर इन द वेरियस आइटम्स सच एज क्लोथ, पेंटिंग एंड अदर आर्टिकल्स वर प्रोड्यूस्ड। एट टाइम मिलिट्री गुड्स वर ऑल्सो प्रोड्यूस इन देयर वर्कशॉप्स, यानी खान का एक तरह की वर्कशॉप होती थी जहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार होती थी जो रॉयल पैलेसेस के लिए यूज़ होती थी, यहाँ तक कि मिलिट्रीज के लिए भी, आर्मी के लिए भी। It is interesting to note that the slaves were appointed as the personal assistant as well as administrative official in Delhi Sultanate। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो स्लेव्स हैं, स्लेव्स हमने किया था, जो दास, जो गुलाम होते थे, उन्हें भी अपॉइंट किया जाता था एज अ पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी अपॉइंट हुए थे। इट मीन्स अगर किसी में कैपेबिलिटी होती थी तो उसे अच्छी पोस्ट भी मिलती थी। नाउ ऑफिशियल्स ऑफ द सुल्तान्स कोर्ट, द सुल्तान कोर्ट वाज कंपोज्ड ऑफ द ऑफिशियल्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सुल्तान। There is a table in your book, page number 29, officials and his and her duty। यहाँ पर कुछ officials के नाम दे रखे हैं और उसकी ड्यूटी क्या थी उसके बारे में। सबसे पहले वज़ीर and his deputies, वज़ीर और उसके साथ काम करने वाले लोग, इनका क्या वर्क था, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनकम, एक्सपेंडिचर्स एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये जो है जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते थे, खर्चे होते थे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसका था, वज़ीर का। नेक्स्ट इज आरिस इज मुमलिक अलॉन्ग विथ हिज डिप्यूटीज, यानी आरिस एंड उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स। लुक आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स, देयर ट्रेनिंग्स एंड द इक्विपमेंट्स। सोल्जर्स के जो उनको अपॉइंटमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट देना और उनकी ट्रेनिंग करना, उनको सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराना, यानी आर्मी का जितना भी वर्क था वो कौन देखता था, आर्य ममालिक। नेक्स्ट इज द वकील इल्दर, इसका क्या वर्क था, the household of the sultan and the palace guards and the personal assistants were under his control। ये जो है प्रोटेक्शन का काम करता था सुल्तान के, पैलेस का जितने भी गार्ड्स होते थे वो सब इसके अंडर में रहते थे। देन है आमिर इज़ हाजिब, इसका वर्क था द मास्टर ऑफ द सेरेमनीज एट द कोर्ट, यानी दरबार में जितनी भी सेरेमनीज, फंक्शंस होते थे उसको कराने का काम किसका होता था, आमिर इज़ हाजिब का। लास्ट इज चीफ काजी, काजी मीन्स द हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट। देखिए काजी एक ऐसा पर्सन होता था मुस्लिम्स में जिसे रिलीजियस नॉलेज होती थी, यानी कि ये जस्टिस का काम करता था, अगर कोई भी केस आता था तो उसको सॉल्व किया जाता था। सो दिस इज़ अबाउट योर पेज नंबर 29। Now I'm explaining the page number 30. Page number 30. Open your books. The next topic of your administration is army. The army was a significant component of the Sultanate. Army बहुत important part था सल्तनत का। अब किस तरह की आर्मी थी, the army consists of the identify or foot soldiers, cavalry of horses, soldiers
आर्चीज एंड द एलिफेंट। देखिए आर्मी में कौन कौन थे? फुट सोल्जर्स, पैदल चलने वाले सोल्जर्स थे, क्लेवरीज थे, जो भी चलते थे, पैदल चलते थे, और घुड़सवार थे, हॉर्स सोल्जर्स, आर्चियर्स थे, और एलिफेंट्स थे। यानी आर्मी में अलग अलग तरह के सोल्जर्स थे, उनका सबका वर्क और जो उनका तरीका था वो सब डिफरेंट था। नेक्स्ट इज horses of goods quality were of the utmost importance and therefore they were important from the Arabia। हॉर्स जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे आर्मी में, और उन्हें इम्पोर्ट किया जाता था कहाँ से? अरेबियन कंट्रीज से। नेक्स्ट इज अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन detailed descriptions of each soldiers were known as the chehra and the branded each horse of his army known as Dag। Land revenue was collected in cash during his reigns, and soldiers were also paid in a cash। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, हम दिल्ली सल्तनत के सभी जितनी भी डायनेस्टी उनके रूलर्स की बात करते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शंस था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, सोल्जर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन रखा जाता था जिसे चेहरा कहा जाता था, और जो ब्रांडेड हॉर्सेस थे उन पर कुछ निशान लगा के रखा जाता था जिसे कहते थे दाग। लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था कैश में, और सोल्जर्स जो है उन्हें कैश सैलरी दी जाती थी। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। द सोशल सुल्तान डिपेंड ऑन द regular income from the land in order to pay the officials, maintain the army, construct buildings, यानी इन सब वर्क को करने के लिए सुल्तान को किसकी ज़रूरत थी? मनी की। सो मनी कहाँ से आता था? रिवेन्यू, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था। वेरियस काइंड ऑफ टैक्स सच एज द खराज और द लैंड टैक्स एंड द हाउसेस टैक्स वर यूज टू द एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू। All the administrative posts in the Sultan were reserved for the noble who constitute the ruling class in society। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी राजा के दरबार में वो किसके लिए रिजर्व थी? नोबल्स के लिए, यानी राज परिवार या उनके रिलेटिव्स के लिए ही रिजर्व थी। द डिस्टिंक्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम्स प्रेमलेम्ड एंड द ऑल रिलीजियस, यानी कास्ट सिस्टम का डिस्टिंक्शंस भी मिला है, यानी कास्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्लेव वर ब्रॉट एंड सोल्ड इन द ह्यूज नंबर इन द मार्केट। स्लेव्स को ख़रीदा बेचा जाता था, यानी ये एक पूरा सा बिजनेस था, मार्केट था जहाँ पे स्लेव्स को, लोगों को ख़रीदा और बेचा जाता था, उसका एक अलग से मार्केट था। इन द पीजेंट्स लिव इन द conditions of the abject poverty। They were subjected to the oppressions from the revenue officials and their demands for the heavy tax। जो peasants थे, जो उनकी कंडीशंस थी वो बहुत पुअर थी, क्योंकि उनका, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बात की थी कि 50% तो उन्हें क्या देना पड़ता था? अपने प्रोड्यूस का टैक्स। तो इतना टैक्स देने के बाद उनके पास कुछ बचता नहीं था। दे वर सब्जेक्टेड टू द ऑपरेशंस फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिशियल, और उनसे ज़बरदस्ती जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, लोग जो थे, जिनको अपॉइंट किया गया था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, बहुत ही अत्याचार या दयनीयता के साथ उनसे टैक्स वसूल करते थे। एंड दे डिमांड फॉर हैवी टैक्स, उनसे हमेशा किसकी डिमांड किया करते थे? टैक्स की। नाउ लास्ट टॉपिक, देयर इज़ टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ द सल्तनत। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। विद दिस वी विल ended with the chapter। So first is division and next is official। तो first division, province called सूबा। province को क्या कहा जाता था? सूबा। headed by the governor of the मुक्ति, उसका हेड कौन था? मुक्ति। जो सूबा था वो किस में डिवाइडेड था? 6 में। किस में डिवाइड था? सिकास में। सिकास का हेड कौन था? सिक्केदार। सिक्का का हेड कौन था? सिक्केदार। नाउ जो सिकास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द परगनास। परगनास जो होते हैं जिसमें बहुत सारे विलेजेस का जो है कंप्राइज द सेवरल विलेजेस, बहुत सारे गाँवों का एक ग्रुप होता था जिसे परगना कहा जाता था, एंड उसका हेड था आमील।
और लास्ट में विलेज, यानी सबसे छोटी यूनिट जो थी, डिविजन्स था, वो था विलेज। अब नाउ विलेजेस जो है उसका ऑफिशियल्स कौन थे? लैंड ओनर्स नोन एज द खुद्स एंड द मुकदम। जो लैंड ओनर्स थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, जिन्हें खुद और द मुकद्दम कहा जाता था। एंड नेक्स्ट इज विलेज अकाउंटेड और पटवारी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ लैंड, क्रॉप्स एंड टैक्स टू बी पेड। एक बार फिर से देखिए डिविजन्स कौन कौन से थे। हम नीचे से स्टार्ट करें। सबसे छोटी यूनिट थी विलेज, फिर बहुत सारे विलेजेस को मिला के बनता था परगनास, परगनास को मिला के बनता था सिकास, और उस पर सारे सिकास को मिला के जो सबसे बड़ी यूनिट थी वो थी सूबास। और इनके जो ऑफिशियल्स हमने अभी डिस्कस किए थे। सो कीप लर्निंग ऑल द टॉपिक्स। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द Sultanate administration and economic and social life. Thank you students, thank you and have a nice day.